اور اللہ نے فرمایا مجھے میری عزت کی قسم جنت الفردوس میں بخیل داخل نہیں ہو سکتا۔ اور شیطان کہتا ہے کہ مجھے عبادت والے بخیل سے کبھی ڈر نہیں لگا کہ اس کا بخل اسے ضرور جہنم میں پھینکے گا۔ نافرمان سخی سے ہر وقت ڈرتا رہتا ہوں کہ اس کی سخاوت کب اسے جنت میں پہنچا دے۔ تو اپنے اوپر خرچ کرو وسعت کے مطابق، اللہ نے روکا نہیں ہے، منع نہیں کیا ہے، لیکن غریب کو بھی یاد کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دے گا، اور فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ پل صراط سے ہو آئے ہو؟ اور وہ لوگ کہیں گے کہ دیکھی ہی نہیں۔ فرشتے پھر پوچھیں گے کہ تمہارا عمل کیا تھا؟ تو وہ لوگ پھر کہیں گے کہ کچھ بھی نہیں، عام لوگوں کی طرح نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے اگر لاگو ہوتی ہے، اگر فرض ہوا تو حج کیا۔ تو فرشتے کہیں گے کہ یہ تو روٹین کے معاملات ہیں، تمہیں اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی فضیلت دی ہے، کوئی تو عمل کیا ہوگا۔ تو پھر وہ لوگ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہمارے حق میں فیصلہ کرتے تھے ہم اس پر آمین کرتے تھے، اس پر صبر اور شکر رکھتے تھے، ہم نے کبھی شکوہ نہیں کیا۔ یہ وہ مقام ہے جو صبر اور شکر کرنے والوں کو دیا جائے گا قیامت کے دن، کہ انہیں بغیر حساب کتاب کے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ کو سخی سے پیار ہے، چاہے نافرمان کو، بخیل سے نفرت ہے، چاہے تہجد گزار۔ ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ تنگی ہے رزق کی، کوئی وظیفہ بتائیں۔ کتنے لمبے لمبے وظیفے لوگ پڑھ رہے ہیں کہ کاروبار کھل جائے اور روزی بڑھ جائے، کتنے لمبے چوڑے، کتنے کتابوں میں ایڈے ایڈے بڑے وظیفے لکھے پہ، پڑھوں گے مندہ بڈھا ہو جائے۔ میں قربان جاؤں یا رسول اللہ آپ کی شفقتوں پر، آپ کی رحمتوں پر، سنو یہ کرو، میری بات نہیں ہے، میرے نبی کی بات۔ تجربے کی وجہ سے کرو گے تو کچھ نہیں ملے گا، یقین سے کرو گے تو دروازے کھلتے دیکھو۔ کہ یا رسول اللہ ارید ان یوسع علی رزقی، میں چاہتا ہوں میری روزی کھل جائے۔ تو آپ نے کہا ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، تو باوضو رہا کر تیرا رزق کھل جائے۔ کوئی زور لگتا ہے وضو؟ جب اس پر موت آئی، اس نے دائیں دیکھا، اسے کوئی نظر نہ آیا، اس نے بائیں دیکھا، اسے کوئی نظر نہ آیا، اس نے پھر میری طرف دیکھا تو موسیٰ میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ جس کو سب چھوڑ جائیں اور وہ بے بسی میں مجھے پکارے اور میں اس کی پکار پہ لبیک نہ کہوں۔ اے موسیٰ، اس نے تو صرف اپنی بخشش مانگی، مجھے میری عزت کی قسم اگر آج مجھ سے پوری دنیا کے انسانوں کی بخشش مانگتا تو میں اس کی طفیل سب کو معاف کر دیتا۔ میرے عزیزوں، نوجوانوں، میرے بھائیوں، آؤ ہم اللہ کو منانے والی زندگی کی آج ابتدا کریں۔ نیت کرتے ہو تو آؤ یہاں بیٹھے بیٹھے ہم توبہ کریں کہ یا اللہ جو ہوا بس ہو گیا، آئندہ نہیں کریں گے، معاف کر دے۔ تو توبہ کی نیت کرتے ہو؟ ٹوٹ جائے تو پریشانی کی بات نہیں، پھر توبہ کر لیں گے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی ماں کے سامنے اف تک نہ کرو، جب بھی بات کرو ایک غلام بن کر بات کرو۔ جو انسان اپنی ماں کو راضی کرتا ہے وہ ایسا سمجھ لے اس نے اللہ کو راضی کر لیا۔ روم کے کھنڈر دیکھنے کے لیے اٹلی جانے کی ضرورت نہیں ہے، اردن جانے کی، ترکی جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہی کھنڈر بتا رہے ہیں میں بھی کبھی کسی کا سر پر غرور تھا۔ یہ اللہ نے تہذیبوں کو کھنڈر کب بنایا؟ جب نافرمان ہوئے۔ لوط علیہ السلام کی قوم بے حیا تھی، ان کے کفر کا الزام سارے قرآن میں ایک دفعہ لگا ہے ان پر۔ جب بھی نبی کہتا تھا تم غلطی کرتے ہو تو اور انبیاء ان پر کفر کا تم کیوں اللہ کا انکار کرتے ہو، تم کیوں اللہ کا انکار کرتے ہو؟ لوط علیہ السلام کو اللہ نے صرف ایک دفعہ کہا کہ یہ کفر کرتے ہیں، باقی ہر دفعہ جتنی دفعہ اللہ نے ان پر لعنت کی تو کہا تم کیسے بے حیا ہو، یہ تم کیا کام کرتے ہو، تم کیسے بے حیا ہو، تم مردوں سے شہوت پوری کرتے ہو۔ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، اس ظالموں تم سے پہلے یہ گندا کام کسی نے نہیں کیا۔ جاؤ قبرستان دیکھو،
टूटी कब्रें देखो, उजड़े घर देखो, शिकस्ता हवेलियां देखो, मुर्दा खोपड़ियां देखो, चमकती गाड़ियां ना देखो, धोखा खा जाएगा। बड़े बड़े घर ना देखो, धोखे में आ जाओगे। बड़े बड़े पार्क ना देखो, धोखे में आ जाओगे और समझोगे यही सब कुछ है। ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। ये मिट जाने का घर है, बर्बाद हो जाने का घर है, खत्म हो जाने का घर है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो आपका नाम मोहम्मद रखा गया। इससे पहले और उस वक्त भी इस नाम का कोई बच्चा दुनिया में मौजूद नहीं था। मोहम्मद मतलब है जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाए, जिसकी बेतहाशा तारीफ की जाए, उसको अरबी में क्या कहते हैं? मोहम्मद। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा, हुजूर इंसान बड़ा कौन होता है? इंसानों में से भला अफजल कौन होता है? सियासता की हदीस है। हुजूर इंसानों में से अफजल कौन होता है? इंसानों में से। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका दिल सलामत हो, जुबान सच्ची हो, वो इंसानों में अफजल। अल्लाह का एक बंदा था, वो बाजार से गुजर रहा था, बल्कि उसकी रहमतें बहाने ढूंढती है। जरा देखिए मंजर। तो उसने देखा एक शराबी है, वो गंदी नाली पे गिरा हुआ है और गंदे पानी से उसका मुंह गंदा हो रहा है। इंसान के एहतराम के नाते दिल में तरस जागा और उसको वहां गंदी नाली से उठाया और उसका मुंह धोया और घर का रास्ता दिखाया। खैर शाम हुई, रात पड़ी। जब पिछला पहर हुआ तो वो बुजुर्ग जिन्होंने दिन को शराबी का मुंह धोया था, तो वो मस्जिद में तहज्जुद पढ़ने के लिए आए तो क्या देखा कि वही शराबी जो दोपहर को गंदी नाली पे धुत पड़ा था, आज उस बुजुर्ग से भी पहले मुसल्ले पे खड़ा होकर नमाज पढ़ रहा है। तो बड़ी हैरत हुई कि ये तो वो दिन वाला शराबी है और मैंने आज इसका मुंह धोया था, नशे में धुत पड़ा था। तो हैरत का इजहार किया तो हातिफ से आवाज आई, मेरे बंदे, तूने इसका मुंह धो दिया था, मैंने इसका दिल धो दिया है। मेरी माँ नाराज हो जाए, मैं मनाने जाऊंगा, मुंह उधर करके बैठ जाएगी, मिन्नतें करवाएगी, पैर पकड़वाएगी, खुशामदें करवाएगी, फिर माफ कर। और मेरा अल्लाह क्या कहता है? मन तकर्रब इलैहि, सारी जिंदगी शराब ज़िना में गुजार दी, दांत टूट गए, बाल सफेद हो गए, कमर झुक गई। अब उसको ख्याल आया तौबा करूं, लोगों ने ताने दिए, जा जा अब तेरी तौबा, अब तेरी तौबा, तो शर्म नहीं आती? काबा के मुंह से जाओगे, गालिब शर्म तुमको मगर नहीं आती। तो और कहां जाना है? और कहां ना कहीं जहां में अमा मिली, जो अमा मिली तो कहां मिली। मेरे जुर्म खाना खराब, तेरे अफ़्फ़े बंदा नवाज में किधर जाएं? एक ही तो जगह है, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, तो हज पे ही तो जाना है, और कहां जाना है? कहां जहां माफी मिलती है वहां जाना है। तुम मैं इतने गुनाह करें कि एक एक बाल गुनाहों में जकड़ा जाए और फिर हम जा रहे हैं। कहां जा रहे हो? कहा मस्जिद जा रहा हूं अल्लाह से सुलह करने। तो वो कहेगा ये मुंह और मसूर की दाल, इस उम्र में तेरी तौबा, और मेरे अल्लाह की खबर क्या आई है? मेरे अल्लाह की खबर क्या आई है? मन तकर्रब इलैया तलक्कैतुहु मिन बईद, जो मुझे मनाने आता है मैं पहले खड़ा होकर उसका इस्तकबाल करता हूं। आजा। 3 काम जो करेगा कभी जिल्लत ना देखेगा, जो झूठ बोलता है, जो जुल्म करता है, जो धोखा देता है, जो झूठ बोलती है, जो जुल्म करती है, जो धोखा देती है, इज्जत के ख्वाब देखने छोड़ दे। जिल्लत मुक़द्दर है इस जहान में, उस जहान। कौम हो, फर्द हो, औरत हो, मर्द हो, जुल्म है, झूठ है, धोखा है, रब्ब जुल जलाल की कसम, जिल्लत के सिवा कुछ ना मिलेगा। जो सच बोलता हो, जो अदल करता हो, जो दयानतदार हो, उसके लिए इज्जत मुक़द्दर हो गई, हो गई, हो गई। मेरे अजीजों, नौजवानों, मेरे भाइयों, आओ हम अल्लाह को मनाने वाली जिंदगी की आज इब्तिदा करें। नियत करते हो तो आओ यहां बैठे बैठे हम तौबा करें कि या अल्लाह जो हुआ बस हो गया, आइंदा नहीं करेंगे, माफ कर दे। तो तौबा की नियत करते हो?
टूट जाए तो परेशानी की बात नहीं, फिर तौबा कर लेंगे, फिर टूट गई फिर कर लेंगे, फिर टूट मालम युगरगिर, जब तक मौत नहीं आती हर दफा की तौबा ऐसे ही कबूल है जैसे पहली कबूल है। तो नियत करते हो सारे भाई, कहो मेरे साथ या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो जोर से या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। ये 3 लफ्ज आपसे मैंने बुलवाए हैं, अगर दिल से बोले हो तो अल्लाह की कसम मुबारक हो, आप सब ऐसे बैठो जैसे अभी मां के पेट से निकले हो, सब माफ। आसमान के फरिश्ते 2 दफा रोए हैं इंसानी तारीख, आसमान के फरिश्ते 2 दफा रोए हैं इंसानी तारीख। एक जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनकी कमर पे अपना घुटना रखा कि सर के बाल पकड़ और छुरी पकड़ के ये कहा कि अल्लाह तुम मुझसे नाराज हो, तो आसमान के फरिश्तों की चीखें निकल गई। और एक जब अल्लाह के नबी को ताइफ में पत्थर पड़े तो अल्लाह मनी अशकु इलैका ज़ौफ़ क़ुव्वत, तो आसमान के फरिश्तों की चीखें निकल गई जब हमारे नबी को ताइफ वालों ने मारा उस पर। ये 2 दफा आसमान के सब फरिश्ते रोए। तो फिर अल्लाह ने कहा बस, नादैनाहु अन या इब्राहीम क़द सद्दक़्ता अर्रुया इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन। इब्राहिम तो पास हो गया है। वालिदैन को अपनी जन्नत बना लो, माँ बाप को अपनी जन्नत बना लो, उनकी दुआ ले लो। मेरे नबी ने फरमाया काश मेरी माँ जिंदा होती। माँ का खास तौर पर मेंशन किया, मेरी माँ क्यों कि बाप को तो देखा ही नहीं और माँ को देखा है 6 साल। मेरी माँ जिंदा होती और मैं ईशा की नमाज के मुसल्ले पे खड़ा होता और मेरे घर से मेरी माँ कहती मोहम्मद, तो मैं माँ के लिए नमाज तोड़ देता। मेरा नबी कह रहा है जो सताता है चुप हो जाओ, जो सताता है चुप हो जाओ। अल्लाह की कसम आप ऐसी ताकत बनोगे कि पहाड़ भी रास्ता देंगे। सब्र इंसान की सबसे बड़ी ताकत, सब्र इंसान की सबसे बड़ी ताकत है, सब्र इंसान की सबसे बड़ी ताकत उल्टा के रख देती है चीजों को। चुप रहना सीख, खामोश रहना सीख। अल्लाह ताला दोज़ख वालों से पूछेगा कम लबिथुम फिल अर्द अदद सनीन, बोलो बोलो दुनिया में कितनी जिंदगी गुजार के आए थे। कहेंगे यौमन, एक दिन। दूसरे कहेंगे गलत कह रहे हैं, बादा यौम, आधा दिन, आधा दिन, एक दिन, आधा दिन, इख्तिलाफ हो गया। मेरा अल्लाह जवाब में कहेगा अरे बदबख्तो तुमने कितने घाटे का सौदा किया। वो दिन आधे दिन के बदले में बस गज़ब, मेरा गुस्सा खरीदा, सौखती, मेरे गजब को, मेरे गुस्से को खरीदा, बनारा जहन्नम, और आग को खरीदा। जाओ आज के बाद जहन्नम को ताला लग चुका है, तुम में से कोई बाहर नहीं निकल सकता। मेरा रब गरीब के दिल में बसता है, मेरा रब गरीब के दिल में बसता है। मेरे रब ने कहा मैं टूटे दिलों में बसता हूँ, मैं टूटे दिलों में बसता हूँ। मेरे नबी से पूछा गया या रसूल अल्लाह क़यामत के दिन आप कहाँ होंगे? तो आपने कहा गरीबों के पास, ये चौकीदारों के पास है। या रसूल अल्लाह जन्नत में जाना कैसे होगा? कब जन्नत में सबसे पहले मैं जाऊंगा, मेरी ऊँटनी की महार बिलाल के हाथ में होगी और मेरे दाएं बाएं मेरी उम्मत के गरीब लोग, रेडी वाले, रक्षे वाले, ये गार्ड, ये चौकीदार। देख मुझे सब ने छोड़ दिया है, तेरे पास आने का वक्त है, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे बंदों से सुना है तू बड़ा गफूर और रहीम है। जान निकल गई। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया मूसा मेरा एक दोस्त वो जंगल में मर गया है, जाओ उसके जनाजे का इंतजाम करो और ऐलान कर दो जो उसके जनाजे में शरीक होगा उसको भी माफ कर दूंगा।